आपकी अदालत में बीना रमानी पर आरोप है कि इन्होंने जेसिका लाल मर्डर केस में सबूतों को मिटाने की कोशिश की। बीना, बहुत सारे अखबारों में, मैगजीन्स में ये लिखा गया कि पुलिस को इन्फॉर्म करने में देरी की गई। मर्डर होने के बाद करीब 45 मिनट तक पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया। ये बिल्कुल ही गलत बात है। That first minute when Shayan Munshi came running and I yelled at him to please call the police. In fact, in his first statement, उन्होंने जो पहले स्टेटमेंट दी थी पुलिस को हॉस्पिटल में, यही उन्होंने कहा था। मैं वहाँ से जब मैंने बताया कि ये है लड़का, उसी वक्त मुझे बीना रमानी ने कहा कि पुलिस को बुलाओ, and he ran into the office outside, immediately called the police. But besides that, lots of boys and girls who had their cell phones were trying to call the police, trying to do any kind of damage control to help, to see what they could do to... No, it is not true. The police would have been called within the first 5 minutes or less. It doesn't... To call number 100 is the easiest thing to do. And they were all responsible people. So, लेकिन इल्जाम तो यह है कि पुलिस को देर से इसलिए बुलाया गया क्योंकि वहां पर जो खून पड़ा था, जो धब्बे थे खून के जेसिका लाल के मर्डर के बाद में, उस खून को मिटाने की कोशिश की गई, एविडेंस के साथ टेम्पर करने की कोशिश की गई। अच्छा, अभी ये आप ही बताइए, टेल मी व्हाट इज द लॉजिक ऑफ, एंड एनीबडी कैन एक्सप्लेन, when a person, I am trying to save her life, to rush her to the hospital, I am yelling and screaming, please call the police, call ambulance, call the hospital. Would I have any interest in wiping the bloodstain of that same person I want to help and take to the hospital and tell the world about to help? Secondly, if you use your own imagination, if a tablecloth is carried under a person, whatever is there would go in the tablecloth. Thirdly, the hospital, when we arrived there, the boys who carried her, she had been coughing a bit of blood, and that blood that came on her was on the shirt of the boys. We gave that shirt to the police. It is with them. If you were to accuse me of saying you wiped the blood of the person who was shooting, then you can say, yes, you're guilty. That makes sense. What am I being accused of? It is so obvious from the beginning, the defense, it was in the interest of the defense to plant the story against me. It suited them. It was a matter was sub judice. We were not allowed to speak about, we were in shock when we heard such a thing. My whole life was going to save this girl, to stop this boy, and I'm going to think of wiping bloodstains. Where is the logic? Why would any human being want to do such a thing? By the time I came, the boys had wrapped her. They did the right thing. The most correct thing was to wrap her, and the first thing, to carry the lady out. It must. If there had been any blood, I think you should talk to the doctor. मेरे पास में एक स्टेटमेंट है, इकबालिया बयान जिसे कहते हैं, सुरेश चंद्र का। ये 30 अप्रैल 1990 की जो महरौली पुलिस के सामने उन्होंने बयान दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि मैं किचन में बर्तन साफ कर रहा था, अचानक मुझे शॉट की आवाज़ सुनाई दी। मैं उठकर अंदर काउंटर के पास पहुंचा, देखा मैडम जेसिका लाल फर्श पर गिरी पड़ी थी। वहां एक गेस्ट ने कपड़ा और पानी मांगा, मैंने कपड़ा और पानी ला कर दिया। फिर वो गेस्ट जेसिका लाल के मुंह को साफ करने लगा। फर्श पर भी खून गिरा था। उनमें से गेस्ट ने कहा कि यहाँ सफाई कर दो, और मैंने फर्श पर पड़े खून को कपड़े से साफ कर दिया। ये हो सकता है क्योंकि it could have been because it must have happened when I had gone running out to chase to Manu Sharma to the gate. It could have happened. I mean, the guest did the right thing. If he told whoever to come and wipe the face, we would normally, that's what any human being would want to do, to help someone who's hurt or whatever. कि ठंडा पानी लगाओ या बर्फ लगाओ जो भी. So it's quite normal to do that. लेकिन आप ये कह रहे हैं फर्श पर जो खून था वो एविडेंस हो सकता था, उसको हटाने की कोई कोशिश? पहले तो अगर एविडेंस हो भी सकता था, जब पुलिस आई तो they should have cordoned off the place. They should have noticed it. If they want to this day, 7 years later, I am inviting them to please come and do all over the world, even 20 years later, they apply chemicals like Luminex and many other names, and you can get exactly what you want to know about the blood. You'll get it right there. But the blood is in Jessica's body. She's in the hospital. She belongs to investigators, to the police, to the hospital, to whoever wants to check out what is the whole issue about the blood. Please, there is no relevance. इशू दो है। हाँ। एक, ब्लड स्टेन हटाए गए जी। कुछ लोगों ने कहा कि एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश की, और दूसरा जो जेसिका ने जो कपड़े पहने हुए थे वो गायब हो गए। वो बिल्कुल गायब नहीं हो गए। We delivered her in the tablecloth to the hospital. हमने डॉक्टर आलोक चोपड़ा को, जो जसलोक हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उनको यहाँ इन्वाइट किया था, लेकिन उनके वो एक्सीडेंट में उनके दोनों शोल्डर्स में चोट लगी हुई है, वो आ नहीं सकते हैं, लेकिन वी हैव हिम लाइव हियर फ्रॉम हिज रेजिडेंस। हम उनसे पूछते हैं। डॉक्टर आलोक चोपड़ा प्लीज। डॉक्टर साहब, सवाल यह है कि जो कपड़े जेसिका ने पहने हुए थे जिसपे ब्लड स्टेन लगे हुए थे,
क्या वो कपड़े गायब हो गए? नहीं, जेसिका लाल जब लाई गई थी तो वो एक शीट या टेबल क्लॉथ के ऊपर लाई गई थी, बिकॉज दैट वाज द इजीएस्ट वे ऑफ पिकिंग अप समबडी हु इज लाइक अ डेड बॉडी। उसके कपड़े वहीं बरकरार थे, कपड़े डाले हुए थे उन्होंने, और कपड़ों पे थोड़े थोड़े खून के स्टेन्स थे, और उसी हालत में वो लाई गई थी। तो कोई उस टाइम किसी ने उसके कपड़े उतारे नहीं थे, और जो शीट या टेबल क्लॉथ थी वो भी साथ में बरकरार थी, सब उसी हालत में जहाँ से जैसे वो बीना रमानी की प्लेस से उठाई गई उसी हालत में लाए गए थे हमारे पास। डॉक्टर चोपड़ा, जिस हालत में लाई गई थी, क्या बचने की कोई उम्मीद थी? आपने अपने हॉस्पिटल से उनको दूसरे हॉस्पिटल में क्यों भेजा? उसमें ऐसा था जी कि जब वो लाई गई थी तो वो बिल्कुल ही जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी फेलियर पे थी, जबकि उनकी पल्स या ब्लड प्रेशर नापा नहीं जा सकता था। बड़ी डिफ़िकल्टी थी ब्रीदिंग में। टेक्निकली शी वाज अलाइव, आई मीन विच मीन्स दैट शी वाज नॉट ब्रेन डेड, but in my considered view it was apparent that she is not likely to survive. However, in that setting हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उसको रिससिटेट करने की, which means के लंग्स में ट्यूब डाली, ब्लड दिया, कुछ ऐसे केमिकल्स दिए जिससे पल्स और ब्लड प्रेशर बढ़े, अपने सर्जन्स को बुलाया, न्यूरो सर्जन्स को बुलाया, इंजरी को असेस करने के लिए कैट स्कैन भी किया, और उस कैट स्कैन के देखने से तो साफ जाहिर ही था कि इस किस्म की इंजरी से कोई बच ही नहीं सकता। उस स्टेज पे जेसिका लाल के पेरेंट्स ने सोचा कि भी कोई एडवांस न्यूरोसर्जिकल फैसिलिटीज़ अपोलो में हैं, तो हमने बताया हैं तो सही, बट इस सूरत में कोई रेलेवेंस नहीं है। बट सिचुएशन ऐसी थी, सिचुएशन इमोशनल थी, वो ले जाना चाहते थे तो हमने उनको रोका नहीं। डॉक्टर साहब, पब्लिक के बहुत सारे लोग, जनता के लोग हमारे सामने हैं, अगर आपसे कोई सवाल, कोई डॉक्टर चोपड़ा से कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जी, आप पूछना चाहते हैं? जी। जैसे आप देख रहे हैं कि इस केस में इतनी पेचीदगी आ चुकी है कि हर आदमी कुछ कह रहा है, किसकी बात पर विश्वास किया जाए, किसकी बात को झूठ माना जाए। तो इसके नाते चूंकि आप एक डॉक्टर थे, उस दौरान आपने उसका इलाज किया, तो आप क्या कहना चाहेंगे देश को कि आप क्या कर सकते हैं? आपके क्या विचार रहेगा कि देश के लिए सच जानने का? तो पहली बात तो मैं कुछ फैक्ट्स क्लियर करना चाहूँगा। सेकंड इज़ कि हर फैक्ट्स में रेलेवेंस भी होनी चाहिए। जैसे कि हमको पूछा जा रहा था, वो डिफेंस लॉयर्स ने पूछा कि कितना खून ब्लड में कपड़ों में गिरा। उनके कपड़े सफ़ेद कमीज़ डाली थी कि वाइट शॉर्ट्स डाली थी, और शॉर्ट्स थी तो डेनिम की शॉर्ट्स थी कि कपड़ों की शॉर्ट्स थी, कि कितनी आर्टरीज या कितनी वेन्स और कितनी कैपिलरीज टूटी। तो ये तो ऐसा जाहिर होता है कि भी मैसेज ये है कि भी डिफेंस को रेलेवेंट क्वेश्चन पूछने चाहिए और डाइवर्ट नहीं करना चाहिए केस, सो दैट जो असली मुद्दा है उस पर कॉन्सेंट्रेट किया जाए, ना कि दूसरे लोग जो इन्वॉल्व थे, दूसरे लोग जिन्होंने अपनी तरफ से बीना रमानी जैसे खूब मेहनत करने की कोशिश की कि जल्दी से जल्दी उसका कुछ मदद मिले जेसिका को, उससे ये है कि भाई उनकी जो बोनाफिडी थी उसको डाउट ना किया जाए। डॉक्टर चोपड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बीना, डॉक्टर चोपड़ा ने तो बिल्कुल साफ साफ कहा कि आपने कोई गलती नहीं की, अब आपके सपोर्ट में ये खड़े हुए, लेकिन आप ये जानती हैं कि आप आज भी शक के दायरे में हैं, क्योंकि ये जो डिफेंस है, जो अपने आप को बचाना चाहते हैं, पहली बार है जो विटनेसेस सामने खड़े हो गए। नहीं तो विटनेसेस डर के मारे किसी न किसी वजह से गायब हो जाते हैं और वो निकल जाते हैं। इस बार उनको कुछ ना कुछ करना ही है विटनेसेस को मारने के लिए, ख़त्म करने के, मतलब दबाने के लिए, और वो कुछ भी हर तरीके की कोशिश करेंगे। हम कितने छोटे लोग हैं, वो तो बहुत ही बड़े लोग हैं, उनकी पहुंच कितनी दूर है, कितनी लंबी है। हम भगवान की तरह जिंदा है, बट वी आर नॉट, वी आर गोइंग टू फाइट टिल द एंड। वी हैव रियली बीन थ्रू अ वेरी हार्ड टाइम विद दिस। बीना, आपको क्या हार्ड टाइम आपको महसूस करना पड़ा? आप तो एक विटनेस थी, आपने कोर्ट में जाकर के अपनी विटनेस होना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल। We need the support of the nation. We get no support. You don't know how our family has lived in these last 7 years. There is no words to tell you. God is with us, and our few friends have supported us, and it sees us through. It has been a very difficult time.
Try talking to any witness who has stayed true in this country. In other countries, we are treated as heroes. We are being punished. So I have to make such an effort to keep a happy face for my family and for the world. The effort it takes, you have no idea what we go through. And we are here, we are going to fight till the end for Jessica's justice. Who else is with us? I want to know who is with us. बिन आप कह रही कि वो बहुत ताकतवर लोग हैं, क्या हर कभी तरीके की ताकत है उनके पास, हर तरीके की इस दुनिया की. They are in government power, they have wealth, they have all kinds of wealth, can buy anything in this country. We don't have that. We have integrity. To me, integrity is beyond any wealth. We will see it through. Our integrity will stick us through till the end. लेकिन आपको ये नहीं लगा कि कम से कम देश की जनता, लोग, पब्लिक आपके साथ है? नहीं, शुरू में उन्होंने इतनी गलत ये जो बात उन्होंने खून की चढ़ा दी शुरू से. First we were in such a shock. We thought, how is anyone going to believe it? We didn't bother. Besides, when I realized every newspaper was copying the other paper and saying the same thing, I begged my lawyer, please let me make a statement about it, let them hear the truth. And he said, no, it's sub judice, we cannot talk. It's in the courts, we have to respect the judges and we cannot talk. And so I've lived with that gagging, I've lived with this for all these years and it's stuck on me. I mean, I'm not the kind of person who would ever do such a thing. People like me don't do things like that. Besides, it's irrelevant. Nobody, even a mad person, wouldn't do such a thing. What is the relevance of if you're trying to save somebody's life to hide their blood? What? Please ask anybody who would do such a thing. I mean, I have no other words to explain to you.